There was a man who worked on the railroad. His name was Bob. एक व्यक्ति था जो रेलवे में काम करता था And he worked on the railroad for a very long time, so he instinct recognizing patterns on the railroad. और ये काफी दिन से अनुभव था रेलवे का नौकरी में और ये ट्रेन का आ जाने का जो कानून सब जानता था He recognized when the wear patterns and also train speeds and mechanical failures. He understood this stuff. उससे सारा अनुभव था ट्रेन को कितना तेज रफ्तार से चलना चाहिए और कौन से रास्ते में जाना चाहिए One afternoon, while he was inspecting the track, he saw an unusual wear pattern near a curve. एक दिन दोपहर को जब वो निरीक्षण करता है रेलवे लाइन को वहां पर कुछ एक असाधारण चीज दिखता है And he recognized that this was a telltale sign that the rail was weakening. और ये जो है इस ट्रेन के लिए ठीक नहीं है ये जो अगर सुधार नहीं करेंगे तो He knew that this could be a dangerous situation because along this, when a train is going by and it puts a lot of pressure on the rails, then the rails could break. उन्होंने देखा कि उनका जोड़ को कि अब ये गाड़ी आएगा तो इसे दबाव डालेगा तो इसमें एक्सीडेंट हो सकता है He told the upper management, we've got to be really careful on these rails. It's very dangerous. But they ignored him. उन्होंने आगे को खबर दिया कि इस रास्ते में ट्रेन का रास्ते में कुछ ऐसे गड़बड़ है परंतु उन्होंने उसको हिसाब नहीं लिया So he took it upon himself to talk to the train conductors that he knew were going to be in that area. And he said, you've got to slow down along this curve. It's dangerous. और उन्होंने फैसला किया जब ट्रेन आया तो रुका के स्लो करके खुद बताएं कि इसमें आस्ते आस्ते धीरे धीरे लेकर जाना नहीं तो ट्रेन को खतरा है And one of these train conductors, he listened to the warning. He listened to this advice. He slowed down along that but he derailed because the rail did break after all. This engineer was correct. और उस व्यक्ति के बात को वो ट्रेन का उस व्यक्ति ने गंभीरता से लिया और वहां पर जो है सुधार करने के लिए निर्णय लिया गया Investigators later on, they confirmed that the rail, yes, it was deteriorating, and Bob, the engineer, he was correct. But he actually saved that train. If it had been going full speed, it would have been a very terrible derailment, an accident. But because he slowed down at Bob's direction, it was only a small derailment. उस व्यक्ति का कहने से उन्होंने गंभीरता से लिया वहां पर ट्रेन को आस्ते से चल आया तब जाके एक्सीडेंट होने से रुका वो ट्रेन जो है एक्सीडेंट नहीं होके वो वहां से जा सका This was all because Bob was able to recognize on the railroad. ये इसलिए बच पाए कि वो एक अनुभव व्यक्ति ने उस जगह को देख लिया उन्होंने खबर दिया इसलिए वो ट्रेन बच पाया Now, the Bible has a very certain and a very important pattern that we're going to look at tonight. और हम लोग आज कलाम में से ऐसी जगह को हम आज रात हम लोग देखने वाले हैं जहां ऐसे हमको कहीं होशियार होने के लिए बताता है But let me share a couple of Bible texts to introduce us to this topic, and then we're going to look at a very important pattern. मैं अभी दो जगह से कलाम में से बताने जा रहा हूं जिसको हम लोग आज देखने वाले हैं Let's go to 1 Chronicles chapter 29, verse 29. पहले हम दूसरा इतिहास का 29 में जाएंगे पहला इतिहास 29 का 29 आप लोग अपना उर्दू में भी दिखे इतिहास को क्या बोलते हैं क्रॉनिकल brother whose English book name English book क्रॉनिकल फर्स्ट क्रॉनिकल yes इतिहास I'll read it in the English first. It says, now, acts of King David, first and last, indeed they are written in the book of Samuel the seer, in the book of Nathan the prophet, and in the book of Gad the seer. That's 1 Chronicles 29:29. कोई हिंदी में पढ़ सकता है पहला इतिहास का 29 का 29 yes brother yes और दाऊद बादशाह के काम शुरू से आखिर तक सब के सब सैमुएल बीन की तवारीख में और नातन नबी की तवारीख में और जाद गैब बीन की तवारीख में आमीन अभी हिंदी में सुनेंगे जी सर मैं पढ़ूं सर
जी मिला तो पढ़े। आदि से अंत तक राजा दाऊद के सब कामों का वृतांत और उसके राज्य और पराक्रम का और उस पर और इस्राएल पर वरन देश देश के सब राज्यों पर जो कुछ बीता इसका भी वृतांत समूएल दर्शी और नातान नबी और गाद दर्शी की पुस्तकों में लिखा हुआ है। आमीन। आमीन। Amen. Okay, so Amen. what we see here, it talks about different books from prophets, true prophets of God. यहाँ पर हमने देखा है परमेश्वर का कुछ भविष्यवक्ताओं का नाम लिखा हुआ है, दर्ज किया गया है। Now, who here knows what books in the Bible King David contributed to? ये लोग राजा दाऊद के बारे में जो अच्छा जानते थे उन्होंने लिखा है। King David actually wrote many of the Psalms. और भजन संगीता में भी कई दाऊद का बारे में हम लोग पाते हैं। What about Samuel? Samuel the seer, book of Samuel? परंतु जो समूएल नबी किताब में है उसमें राजा दाऊद का इतिहास और भी स्पष्ट से जान सकते हैं हम लोग। Yes, there is First Samuel and Second Samuel in the Bible. और जैसे हम जानते हैं कि पहला समूएल नबी किताब है और दूसरा समूएल नबी किताब भी है, 1 और 2। Now, what about the book of Nathan? Is it possible to turn to the book of Nathan in the Bible? और यहाँ पर भविष्यवक्ता नाथन के बारे में लिखा हुआ है, तो ये नाथन ने क्या लिखा का हम पाते हैं। No, it is not. There is no book of Nathan in the Bible. हम लोग जानते हैं नाथन नबी किताब नहीं है पवित्र शास्त्र में, बाइबल में। What about the book of Gad the seer? प्लीज सर। The book of Gad. Is there a book of Gad? Can we go to the book of Gad in the Bible? कोई समझ पा रहा है ये पास्टर क्या कह रहा है? Yeah, it's in that verse, right? It talks about this King David, and then there's the book of Samuel, and there's the book of Nathan and the book of Gad. ये जो किताब है जहाँ पर राजा दाऊद के बारे में लिखा है, समूएल के बारे में, और नथन ने क्या क्या संदेश पहुंचाया, और जो आखिरी जो बता रही मैं पकड़ नहीं पा रहा हूँ। So David, his writings are in the Bible. They're in the Psalms. The book of Samuel is in the Bible, but there is no book of Nathan or no book of Gad in the Bible. गैद की भी कोई बुक नहीं बाइबल में लिखी, कोई किताब नहीं है। जी, ये भविष्यवक्ता गैद के बारे में जो राजा दाऊद के बारे में ये पवित्र शास्त्र बाइबल में हम नहीं पाए जाते हैं। Does that mean Nathan and Gad not inspired? They were not true prophets? Yeah. इसका मतलब ये जो क्या राजा पवित्र भविष्यवक्ता जो नथन है और गैद है, क्या सही बातें नहीं बोलते थे? No, not at all. They were true prophets. Their books didn't get into the Bible, and that's okay. ऐसा बात तो नहीं है वो नकली भविष्यवक्ता है, परंतु ये बाइबल में नथन और गै का नाम से हम लोग किताब नहीं पाते हैं। There are other prophets in the Bible whose writings did not make it in the Bible. इस तरह से कई भविष्यवक्ता हैं जिनका नाम कलाम में बाइबल में नहीं है। Some other, for example, we mentioned Nathan already. There's Ahijah. There's no book of Ahijah, but he was a true prophet. There's Iddo. His writings are not in the Bible, but he was a true prophet. और जबकि भविष्यवक्ता है अहीजा और कुछ और ऐसे नामे हैं जिनका बारे में तो लिखा है, लेकिन उनकी किताब नहीं पाए जाता है पवित्र शास्त्र बाइबल में। There are other ones that I could go over, but the point is, not all of the prophets had writings that made it into the Bible that we read today. और कुछ ऐसे भविष्यवक्ता है उनको अधिकार शायद नहीं दिया गया उनका पवित्र शास्त्र में शामिल करने के लिए। And it doesn't mean that they were less inspired. It doesn't mean they were false. It just means that their writings were very specific and we didn't need them. उसका मतलब ये नहीं है उनके जो भविष्यवाणी गलत था और वे लोग खराब थे, ऐसा नहीं है, लेकिन स्पेसिफिक पॉइंट कुछ एक नैतिक वजहों से जो इनका नाम बाइबल में नहीं लिया गया है। Only for those specific people at that time period. और कुछ निश्चित लोगों को भी चुनकर जो है भविष्यवक्ताओं की किताब में लिया गया। You see, the Bible teaches that there would be many prophets, not just the ones in the Bible. And we should be ready to expect prophets even in these last days. इस तरह से बहुत से भविष्यवक्ता हैं
उनके बारे में बाइबल में हम पाते तो हैं उन्होंने क्या बोला था, परंतु उनका किताब या नाम से किताब नहीं लिया गया है। इसी प्रकार से हम होशियार होना है, अंतिम दिनों में भी कुछ ऐसे भविष्यवक्ता निकल आएंगे जो सही बातों को ही वे भविष्यवाणी करेंगे। Take a look at this other text. Let's go to 1 Thessalonians chapter 5. अभी हम लोग पहला थेसलोनियन की किताब को देखेंगे 5 अध्याय में। Thessalonians chapter 5 verses 19 to 21. It says, "Do not quench the spirit, do not despise prophecies, test all things, hold fast what is good." उस वचन को एक बार पढ़ेंगे, क्या लिखा है सर? 1 थेसलोनियन Yes, चैप्टर 5। First Thessalonians chapter 5 verse 19 to 22। रूह को ना बजाओ, नबूवतों की हकारत ना करो, सब बातों को आजमाओ, जो अच्छी हो उसे पकड़े रहो, हर किस्म की बदी से बचे रहो। आमीन। आइए हिंदी से भी पढ़े। पहला थेसलोनिकियों 5 का 19 से 22। किसी को मिला? मैं पढ़ूं सर? अगर मिला है तो पढ़े बेटा। इस प्रकार लिखता है, पहला थेसलोनिकियों 5 का 19 इस प्रकार लिखता है, आत्मा को ना बुझाओ, भविष्यवाणियों को तुच्छ न जानो, सब बात को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। आमीन। 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 This is a New Testament passage. It's saying that there will be prophecies in the future. There will be prophets, and we need to test all things to see if they're true or false. And if they're true, we should follow them. यहाँ पर नया नियम में भी हम पाते हैं, अगर कोई भविष्यवाणी करे तो उसका वैसे इनकार मत करो, उसका जो भला हुआ चीज है वो सही है कि नहीं परख कर देखो। Now let's take a look at a pattern we see in the Bible that's going to reveal something extraordinary. हम लोग वचन में एक जगह में देखेंगे जहाँ पर असाधारण चीजें को हम पाते हैं, जैसे कि उत्पत्ति 15:12 से 15। एक व्यक्ति पढ़े, मैं पढ़ूं, बोलने वाला पढ़े। Genesis 15 to 15. This is a long passage here. उत्पत्ति का 12 से 15 इस प्रकार लिखता है, जब सूर्य अस्त होने लगा तब अब्राम को भारी नींद आई, और देखो अत्यंत भय और महा अंधकार ने उसे छा लिया। तब यहोवा ने अब्राम से कहा, यह निश्चय जान कि तेरे वंश पराये देश में परदेसी होकर रहेंगे, और उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे, और वे उनके 400 वर्ष तक दुख देंगे। फिर जिस देश के वे दास होंगे उनको मैं दंड दूंगा, और उसके पश्चाताप वे बड़ा धन कहां से लेकर निकल जाएंगे। तू तो अपने पितरों के कुशल के साथ मिल जाएगा, तुझे पूरे बुढ़ापे में मिट्टी दी जाएगी। आमीन। एक बार उर्दू से भी सुने। Yes, Book of Genesis chapter 15 verse 12 to 15। सूरज डूबते वक्त इब्राहिम पर गहरी नींद गालिब हुई, और देखो एक बड़ी होलनाक तारीकी उस पर छा गई, और उसने अब्राम से कहा, यकीन जान कि तेरी नस्ल के लोग ऐसे मुल्क में जो उनका नहीं परदेसी होंगे, और वहां के लोगों की गुलामी करेंगे, और वो 400 बरस तक उनको दुख देंगे। लेकिन मैं उस कौम की अदालत करूंगा जिसकी वो गुलामी करेंगे, और बाद में बड़ी दौलत लेकर वहां से निकल आएंगे, और तू सही सलामत अपने बाप दादा से जा मिलेगा, और नहायत पैरवाई में दफन होगा। आमीन। आमीन। And in the English, now when the sun was going down, a deep sleep fell upon Abram, and behold, horror and darkness fell upon him. Then he said, no descendants will be strangers in a land that is not theirs, and will serve them, and they will afflict them 400 years. And also the nation whom they serve I will judge, for they shall come out with great possessions. Now as for you, you shall go to your fathers in peace, you shall be buried at a good old age. What we see here is God gave Abraham a 400-year-long prophecy. हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं खुदा अब्राहम को एक 400 साल के एक भविष्यवाणी एक सुनाता है। In this prophecy, God told Abraham that his children, the Israelites, will be slaves in Egypt for 400 years. खुदा ने ये अब्राहम को ये कहा, जो आपका जो संतान है वे
400 साल तक गुलाम में रहेंगे। Abraham is a prophet that God gave a time prophecy to, 400-year prophecy. और ये अब्राहम को भी हम लोग भविष्यवक्ता बोल सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने, खुदा ने इस चीज को भविष्यवाणी करने के लिए दिया। At the end of the 400 years, the Israelites came out of Egypt. Do you remember the prophet that helped them come out of Egypt? अब हम वचन को पढ़ते कलाम को, तो वैसे ही इजरायली लोग वह मिस्र देश में गुलाम में फंस जाता है 400 साल के लिए, और वहां से किस तरह से बाहर निकल आजाद करके लेकर आए, इस कहानी को हम जानते हैं। Moses was the prophet that God raised to bring the Israelites out of Egypt. वहां पर भविष्यवक्ता मूसा को खुदा ने नियुक्त किया कि उन लोगों को वहां से आजाद करके लेकर बाहर लेकर आने के लिए। There was a prophet at the beginning of the prophecy, and there was a prophet at the end of the time prophecy. और यहाँ पर हम देखते हैं भविष्यवाणी के द्वारा ये चीजें बताया गया है, और भविष्यवाणी के द्वारा ही, एक भविष्यवक्ता के द्वारा ही वहां से निकाल के आजाद करके लेकर आया। Now we see this same pattern again in Jeremiah. Let's go to Jeremiah 29:10-12. अभी हम लोग यिर्मयाह की किताब 29 में जाएंगे, 10 से 12 तक को पढ़ेंगे। I'll read it in चले, the, कोई है हिंदी में? I'll read it in the English while you find it. It says in Jeremiah 29:10-12, "For thus says the Lord, after 70 are completed at Babylon, I will visit you and perform my good toward you, and cause you to return to this place. For I know the thoughts that I think toward you, says the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you a future and a hope. Then you will call upon me and go and pray to me, and I will listen to you." यहाँ पर यिर्मयाह किताब 29 का 10 से 13 में पढ़ने से और एक भविष्यवाणी का पूरा होने का हम लोग देखते हैं। एक बार हिंदी से पढ़े कोई? जी सर। इन उर्दू वह यो कहता है, बेबीलोन के 70 वर्ष पूरे होने पर मैं तुम्हारी शुद्धि लूंगा और अपना यह मन भावना वचन कि मैं तुम्हें इस स्थान में लौटा ले आऊंगा पूरा करूंगा, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। आमीन। आमीन। उर्दू में पढ़ेंगे। क्योंकि खुदावंद यूं फरमाता है कि जब बाबल में 70 बरस गुजर चुकेंगे तो मैं तुमको याद फरमाऊंगा और तुमको उस मकाम में वापस लाने से अपने नेक कौल को पूरा करूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे हक में अपने ख्यालात को जानता हूँ। खुदावंद फरमाता है, यानी सलामती के ख्यालात, बुराई के नहीं, ताकि मैं तुमको नेक अंजाम की उम्मीद बख्शूं। तब तुम मेरा नाम लोगे और मुझसे दुआ करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा, और तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे जब पूरे दिल से मेरे तालिब होगे। आमीन। आमीन। Amen. So what we see here is Jeremiah, a prophet, was given a time prophecy from God. It was 70. यहाँ पर और एक बार भविष्यवक्ता यिर्मयाह के द्वारा हम देखते हैं कि इस्राएलियों के लिए और 70 साल गुलाम में रहेंगे और वहां से कैसे फिर आजाद होंगे। At the end of this 70-year prophecy, God raised another prophet, Daniel, to see the fulfillment. Let's go to Daniel chapter 9, verses 1 and 2. अभी हम लोग इस यिर्मयाह के द्वारा जो भविष्यवाणी 70 साल जो कैद होंगे, गुलाम होंगे और उसका अंत कैसा होगा, हम लोग दानियल नबी किताब 9 का 1-2 में हम पाते हैं। Daniel 9, verses 1 and 2, it says, "In the first year of Darius, the son of Ahasuerus, of the lineage of the Medes, who was made king over the realm of the Chaldeans, in the first year of his reign, I, Daniel, understood by the books the number of the years specified by the word of the Lord through Jeremiah the prophet.
that he would accomplish 70 years in the desolations of Jerusalem. मिसेस नायक और एक बार पढ़ लीजिए आप दानियल का 9 का 1 और 2 को। उसके राज्य के पहले वर्ष में मुझ दानियल ने शास्त्र के द्वारा समझ लिया कि यरूशलेम की उजड़ी यहोवा के उस वचन के अनुसार नबी के पास पहुंचा था। कुछ वर्षों के बीतने पर अर्थात 70 वर्ष दानियल के अध्याय बाद 9 का पूरी हो 1 और 2 जाएगी। में लिखा है, मादी द्वारा कसदियों के देश पर राजा ठहराया गया था। उसके राज्य के पहले वर्ष में मुझ दानियल ने शास्त्र के द्वारा समझ लिया कि यरूशलेम की उजड़ी हुई तथा यहोवा के उस वचन के अनुसार जो यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा था, कुछ वर्षों के बीतने पर अर्थात 70 वर्ष के बाद पूरी हो जाएगी। आमीन। 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 उर्दू में दारा बिन अक्सियास जो मादियों की नस्ल से था और कसदियों की ममलकत पर बादशाह मुकर्रर हुआ, उसके पहले साल में यानी उसकी सल्तनत के पहले साल में दानियल ने किताबों में उन बरसों का हिसाब समझा जिनकी बाबत खुदावंद का कलाम यिर्मयाह नबी पर नाजिल हुआ कि यरूशलेम की बर्बादी पर 70 बरस पूरे गुजरेंगे। आमीन। आमीन। What we see is that God raised Daniel to see the fulfillment. God gave a prophet Jeremiah a 70-year prophecy, and then God raised Daniel to see the fulfillment of that prophecy. यहाँ पर भी देखते हैं जैसे पहले अब्राहम को जो दिया था वो मूसा के द्वारा पूरा कर दिया गया, उसी प्रकार से यहाँ पर भी जो यिर्मयाह ने 70 साल के लिए जो गुलामी देखा था, वो परमेश्वर ने दानियल को खड़ा किया, भविष्यवक्ता को, उस साल को खत्म करने के लिए। Take a look at 2 more of these patterns. We're establishing that the Bible repeats, it does the same thing over and over again. And when the Bible repeats itself like that, it means we need to pay attention. और इसी तरह से हम लोग कलाम में देखते हैं कि बार बार इसी तरह से भविष्यवाणी होता है, उसका किसको देता है और कैसे पूरा हो जाते हैं, कई जगह हम लोग देखते हैं। Daniel chapter 9, verse 25, it says, "Know therefore and understand that from the going forth of the command to restore and build Jerusalem, until Messiah the Prince, there shall be 70 weeks and 62 weeks. The street shall be built again, and the wall चल दानियल चैप्टर 9 chapter 9, verse 25. 5 में लिखा है, अब तो यह जान और समझ ले कि यरूशलेम के फिर बसाने की आज्ञा के निकलने से लेकर अभिषिक्त प्रधान के समय तक 7 सप्ताह बीतेंगे। फिर 62 सप्ताहों के बीतने पर चौक और खाई समेत वह नगर कष्ट के समय में फिर बसाया जाएगा। आमीन। उर्दू में भाई मतलब 15 वर्ष 25 9:25 25 वर्ष। यस यस। फर्स्ट तू मालूम कर और समझ ले कि यरूशलेम की बहाली और तमीर का हुक्म सादर होने से ममसू फरमा नरवा तक 7 हफ्ते और 62 हफ्ते होंगे। तब फिर बाजार तमीर किए जाएंगे और फसील बनाई जाएगी, मगर मुसीबत के अयाम में। आमीन। आमीन। Amen. So God gave Daniel a prophecy, a time prophecy that predicted when Jesus would come the first time. यहाँ पर परमेश्वर दानियल भविष्यवक्ता को ये दे रहा है कि ये 62 हफ्ता का यहाँ पर यीशु मसीहा का आगमन जन्म कब से होगा। And then God raised another prophet, John the Baptist, to see the fulfillment, to see that Jesus has come. John the Baptist is the one that baptized Jesus, and Jesus began his ministry. और इसी दानियल नबी को जो दिया है 62 हफ्ता में एक अभिषेक आएगा, वो कहाँ से इसको पूरा करने के लिए बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना को खड़ा किया, जिन्होंने यीशु मसीहा को रास्ता आगे बनाया और यर्दन नदी में बपतिस्मा दिया। Let's review briefly, and then we're going to look at one more instance, and we're going to see why it has to do with us today. अभी हम लोग करके सुनकर आ रहे हैं कि भविष्यवाणी होता है और पूरा होता है, उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी एक जो है हमको भविष्यवाणी करना है जो कि पूरा होने वाला है, इस चीज के बारे में हम लोग अभी चर्चा करेंगे। God gave Abraham a 400-year prophecy and raised Moses and another prophet to see the fulfillment of that prophecy. जैसे कि हमने सुना उत्पत्ति में
परमेश्वर खुदा ने अब्राहम को एक भविष्यवाणी दिया 400 साल का, और उसका पूरा होने पर मूसा को खड़ा किया, उसके द्वारा आजाद किया गया। God gave Jeremiah a time prophecy and then raised Daniel to see the fulfillment. और भविष्यवक्ता यिर्मयाह को परमेश्वर ने एक 70 साल का वो भविष्यवाणी करवाया, उसका पूरा होना जो है भविष्यवक्ता दानियल के द्वारा करवाया। God gave Daniel a 483-year prophecy of when Jesus would come the first time, and then he raised John the Baptist, another prophet, to see the fulfillment. और परमेश्वर ने दिखाया कि दानियल को कि ऐसे आते आते कितने साल के बाद मसीहा जो अभिषेक वाला है वो आएगा, और उसका फुलफिलमेंट जो है भविष्य बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना के द्वारा पूरा किया गया। Go to Daniel chapter 8 verse 14, the last prophecy we're going to look at today. आज हम लोग अंतिम भविष्यवाणी को देखेंगे जो कि दानियल 8 में है। दानियल चैप्टर 8 Chapter 8 verse 14 says, and he said to me, for 2,300 days then the sanctuary shall be cleansed. इससे कोई पढ़े। Daniel 8:14. और उसने मुझसे कहा, जब तक सांझ और सवेरा 2300 बार ना हो तब तक होता रहेगा, तब पवित्र शास्त्र शुद्ध किया जाएगा। आमीन। उर्दू में और उसने मुझसे कहा कि 2300 सुबह और शाम तक, उसके बाद मकदस पाक किया जाएगा। आमीन। We studied before, आमीन। we take the day for year principle, and so this means that it's 2,300 years until we would see the fulfillment of this prophecy. 2300 साल जो है कैसा पूरा हुआ, हम लोग इसका एक कुंजी होता है, जो इसका एक मेथड होता है, उसका अनुसार हम लोग किताब लगाना होता है। This time prophecy brings us to the year 1844. ये इस भविष्यवाणी का कहने का मतलब है इसका जो 1844 तक के लिए भविष्यवाणी किया गया है। 1844 is when Jesus in the heavenly sanctuary began cleansing the heavenly sanctuary. ये उस वक्त से लेके 1844 जो है और आकाश में, आसमान में यीशु मसीहा महापवित्र स्थान में प्रवेश करता है। And there were a group of believers who misinterpreted this Bible prophecy and thought that the cleansing of the sanctuary was Jesus' second coming. They thought Jesus was going to come, return to the earth in 1844. ये बहुत से मसीही लोग गड़बड़ी में हैं। ये जो 1844 जो है ये वहाँ का महापवित्र स्थान का सफा करने का नहीं होके जो है ये यीशु मसीह का आगमन है बल्कि लोगों ने विश्वास किया। And then when Jesus didn't come in 1844, this group of Christian believers realized or studied the Bible again. So why didn't Jesus come? They discovered that the cleansing of the sanctuary was not Jesus' second coming. जब 1844 में कहने के अनुसार जब यीशु मसीह नहीं आया तो बहुत से मसीही लोग उनका विश्वास ठंडा हो गया, पर उनमें से कुछ लोग है कि ये यीशु मसीह क्यों नहीं आया, वाकई में किस लिए नहीं आया होगा, इसके बारे में अध्ययन करने लगा। They discovered that the sanctuary is Jesus cleansing us from all of our sins. जब बाइबल में अध्ययन करने लगा तो ये जो था आकाश का महान पवित्र स्थान को सफा करने का समय है करके उन्होंने ढूंढ निकाला। That's finished, then he's going to come. So we know that it's going to happen very soon. Can you repeat, sir? So when the cleansing of the sanctuary, when Jesus finishes cleansing us from sin, then he's going to return. इसका मतलब ये था कि परमेश्वर यीशु मसीह हमारे हृदयों में जो पाप है ये सब सफा जब सब कर लेगा तभी वो हमें लेने आएगा। Well, let's go back to the pattern and follow it. God gave Daniel a time prophecy. So what should we expect at the end of the time prophecy? What should we expect in 1844? आए हम लोग उस दानियल का भविष्यवाणी को फिर देखेंगे कि ये क्यों ये 1844 में गिरता है। We should expect another prophet. और एक भविष्यवक्ता को हम लोग देखेंगे। Was that prophet
that showed up around 1844. और जिसने ये 1844 को देखा उसके बारे में चर्चा करेंगे। Interestingly, Satan knew this. Satan knows the Bible better than us. And so he raised all sorts of many different belief systems and many false prophets around that time. ये गजब के बात है कि जो शैतान है दुष्ट, ये हम लोगों से ज्यादा बाइबल के बारे में जानकारी रखता है। बिल्ले That was even the time when Charles Darwin wrote The Origin of विवेक वाला and atheism became big after that. बाबू शायद आपका खुला हुआ है, प्लीज रिपीट सर। Yeah, Satan Charles Darwin, who wrote The Origin of Satan, made atheism become popular. ये जो शैतान है बहुत चालाक है कि लोगों को धोखाधड़ी देने में वे माहिर है। So Satan knew that God was going to raise a true prophet, so he raised all these false prophets and false movements and false ideas. Let me talk वो about शैतान true prophet that God raised. अच्छी तरह जानता था कि ये परमेश्वर जो है अपना भविष्यवक्तों को खड़ा करेगा, इसलिए वो भी अपना गलती जो नकली भविष्यवक्तों को तैयार करता था। Her name is Ellen White. She had accurate predictions. She wrote many books that bring people to Jesus. और परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ता के लिए एक एलन जी वाइट नाम का एक औरत को फिर खड़ा किया। She made predictions about the American Civil War, about war and calamity, and she wrote a lot about health. खुदा उस एलन जी वाइट को अलग अलग चीजें वो दिखाता था कि अमेरिका में कैसा लड़ाई होगा, किस तरह से गड़बड़ होंगे, वो सब दिखाता था। जो भी दिखाता था बोलता था वो पूरा पूरा होता था। I wrote in the chat box something that she wrote in 1864. अभी मैं चैट में जो दिखाया है उन्होंने लिखा कि 1864 का लिखा हुआ एक उनका भविष्यवाणी। In 1864, she said that smoking was bad for you. उन्होंने 1864 में बोला था ये जो तंबाकू सेवन है ये खराब है। Now we take that knowledge for granted, but back 160 years ago, doctors actually thought smoking was good for you. पहले जो दुनिया का दिमागदार डॉक्टर लोग बोलते थे 160 साल पहले कि ये जो तंबाकू पीना ये अच्छी बात है, हानिकारक नहीं है, लोग बोलते थे। You can imagine all the people that laughed at her because she only had a 4th grade education. How could this woman with such a low education tell us about health? इतना साल पहले जबकि केवल 4 स्टैंडर्ड 4 क्लास पढ़ा हुआ वो औरत कैसे जान सकते कि इतनी बड़े-बड़े बातें कि ये मनुष्य जाति के लिए ठीक नहीं है। But she was right. In fact, it took another 100 years for the American Cancer Society and the American Heart Association to papers saying that smoking was bad for you. उससे 4 क्लास पढ़ी औरत ने जो बोली थी 100 साल के बाद देखते देखते अमेरिका का साइंटिस्टों ने पाया कि ये तंबाकू है, इसके सेवन करना हानिकारक है। Ellen White also said in 1905 that cancer is caused by viruses. यहाँ तक कि 1905 में खोजबीन किया गया है कि कैंसर का जो है ये भी तंबाकू का वजह से होता है। It took another 50 years for the University of California to say, yes, viruses cause cancer. और उससे 50 साल के बाद फिर कैलिफोर्निया में खोजबीन से पता चला कि वाकई में ये कैंसर जो है तंबाकू के द्वारा ही उत्पन्न होता है। How could this uneducated person know these things decades in advance, even 100 years in advance, the things that are good for your body and the things that are bad? It's because God revealed it to her. She was, in fact, a prophet of God. ऐसा कैसा मुमकिन है केवल एक 4th क्लास पढ़ी औरत जो उस समय सच्चाई को जान लिया है। Let's take a look at 2 Chronicles chapter 20, verse 20. हम लोग देखते हैं दूसरा इतिहास का 20 का 20 में क्या लिखा है। 2 Chronicles chapter 20 verse 20। 2 Chronicles 20,
It says, "Hear me, O Judah, and you inhabitants of Jerusalem. Believe in the Lord your God, and you shall be established. Believe his prophets, and you shall prosper." कोई पढ़ लेगा हिंदी में दूसरा इतिहास 20 का 20। बिहान को वे सवेरे उठकर तकोवा के जंगल की ओर निकल गए और चलते समय यहोशापात ने खड़े होकर कहा, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के निवासियों, मेरी सुनो, अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो, तब तुम स्थिर रहोगे। उसके नबियों की प्रतीत करो, तब तुम कृतार्थ हो जाओगे। आमीन। आमीन। उर्दू में भी सुनेंगे। और वो सुबह सवेरे उठकर दश्त तकवा में निकल गए और उनके चलते वक्त यकूसत ने खड़े होकर कहा, हे यहूदा और यरूशलेम के बशिंदों, मेरी सुनो, खुदावंद अपने खुदा पर ईमान रखो तो तुम कायम किए जाओगे, उसके नबियों का यकीन करो तो तुम कामयाब होगे। आमीन। आमीन। So when we believe the prophets that God sends us, we prosper. यदि हम लोग भविष्य वक्तों को परमेश्वर का खुदा का भेजा हुआ हम लोग यकीन करते हैं तो हम लोग कामयाब होंगे, हम लोग सफल होंगे। The Seventh-day Adventists all live longer and healthier than the average person is because we listen to what Ellen White says about health, about how we should live. इस युग में भी जिंदा रहने के विषय में भी जो चौथी क्लास पढ़ी एलन जी वाइट ने जो खान पान के बारे में जो सिखाया है, ऐसे जो लोग अपनाते हैं, ऐसे लोग खान पान करते हैं, उनका जीवन लंबा होता है, ज्यादा दिन जीते हैं। There's a story of two young engineers who created an amazing product in their garage. ये कहानी है दो इंजीनियर जिन्होंने अपना आविष्कार किया है। They faced a major challenge. They didn't have any business experience. इन दोनों के लिए बहुत एक संघर्षपूर्ण एक चीज था क्योंकि उनके पास कोई खास अनुभव भी नहीं था। A brilliant idea, but they needed guidance. और उन्होंने जो है एक बहुत अच्छे से सोचा, Otherwise, their idea would have just fizzled out and nobody would have known about it. नहीं तो वे क्या कर रहे हैं हम लोग भी वो जान लेते, दूसरे लोग भी जान लेते। Then they met an older man, a seasoned entrepreneur who understood business. और can you repeat, sir? These two young engineers, they met an older man, an entrepreneur, a businessman who understood how to run a business. और उन्होंने एक पाया एक व्यक्ति बुजुर्ग आदमी को जो एक बिजनेस के बारे में अच्छा जानकारी रखता है। He offered them very valuable advice. और उस बूढ़ा ने उन दोनों को बहुत एक अच्छा उपदेश दिया। He told them to make their product user-friendly, simple, and intuitive. Then people are going to like it. और जो कुछ आप लोग बनाते हो उसको ज्यादा गहरे तौर से मत बनाओ, लोग ताकि लोग पसंद कर सके उन चीजों को, ऐसा बनाओ। He taught them about marketing. You've got to market this. You've got to build a simple, strong brand so that people recognize you. और ऐसे चीजें बनाओ जब बाजार में लेके जाओ लोग आप दोनों को याद करें। And so these two young engineers, they listened to the advice of this older businessman. और दो इंजीनियरों ने उस बूढ़ा आदमी के सलाह को माना। Eventually, they launched their product that was easy to use for every person. और उन्होंने ऐसा चीज बनाया जो कि सब लोग अधिकतर इस्तेमाल करें। And their product started to spread. Their business started to grow very rapidly. और उसी तरह से उनका बनाया हुआ चीज को लोग पसंद करने के लिए लोग लेने लगे और वो और भी डिमांड्स होते रहा। And they became worldwide. और वो एक दिन बहुत मशहूर हो गए पूरा दुनिया में। In fact, you might be using one of their products right now. और यहाँ तक कि हम लोग भी उन्होंने जो बनाया उसको हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। The engineers were Steve Jobs and Steve Wozniak. ठीक है। Sir, because of poor network, you repeat? The name of these two engineers was Steve Jobs and Steve Wozniak. जो उन्होंने नाम बोला वो दोनों उनका नाम था, स्टीव वॉट, स्टीव जॉब्स। And because they listened to the advice of Mark Markula, their business exploded and is worldwide now. उन्होंने जिनके सलाह माना था वो मार्क जो बोला उस बूढ़ा आदमी का सलाह सुनकर ऐसे वे मशहूर हो पाए हैं। The company they founded was Apple.
They invented the iPhone. ये बड़ा कंपनी है, उन्होंने एप्पल कंपनी बनाया जिसके द्वारा अभी जो महंगा फोन आईफोन जो हम लोग चलाते हैं वो बाद में उत्पन्न हुआ। And now we have iPhones all over the world. और अभी हम लोग सारा संसार में आईफोन को अच्छा पाते हैं, हम लोग चलाते हैं। And it was all because Steve Jobs and Steve Wozniak listened to good advice. ये जो स्टीव दोनों ने उस बूढ़ा आदमी का सलाह को सुना, ऐसा चीज बनाया जो सबके काम आए, ऐसे उन लोग मशहूर हो गए। The Bible gives us advice, and that is listen to the prophets that God sends us. इसलिए यहाँ पर पवित्र शास्त्र हमको बता रहा है कि जो भविष्य वक्ताओं का बातों को मानो, सुनो। So I encourage everyone here to read Steps to Christ. Steps to Christ is a very small book, but it was written by Ellen White. एक किताब है ख्रिस्त और कदम, स्टेप टू क्राइस्ट, उसको पढ़ने के लिए मैं अब सबको सलाह देता हूँ। And I've read this book over and over again. It has brought me closer to Jesus every time I read it. मैं इस किताब को पढ़ा हूँ और बार बार पढ़ता हूँ। यीशु के पास करीब जाने के लिए क्या करना है इस किताब से हम पाते हैं।